Okay, chalo. Last time we have seen what are all points. We have seen about the CTS, check truncation system, and then we have seen about this point, core banking system. Okay, and after that, now we're going to start with the digital signature and then M wallets. Okay, ये दो point आज देख लेते हैं. If we'll get the time, then we'll start with the third point also, basic of opening online saving and current account. फिर अपना थोड़ा सा ही पॉइंट बच जाएगा, so that we will going to see it in the next lecture. So maybe as I told you, we may need 2 or 3 more lectures to complete this third module. Once it will get over, then we'll start with the presentation. Okay, so let's start here. Let's start with the digital signature. Yes, everybody know what is digital signature here. So still we'll see like what they have given in no textbook. A digital signature is a mathematical scheme for demonstrating the authenticity of digital message or document. A valid digital signature gives the recipient reason to believe that the message was created by a known sender, that is authentication, that the sender cannot deny having sent the message, non-repudiation, and that the message was not already in ट्रांजिट इंटीग्रिटी ओके तो यहाँ पे क्या रहता है सपोज अगर मेरा डिजिटल सिग्नेचर है तो वो वहाँ पे मेरे सिग्नेचर का एक व्हाट वी कैन से मैकेनिकली वहाँ पे एक सिग्नेचर बनाया रहेगा एंड देन इट विल बी काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी इंडिकेटिंग कि ओके इफ दिस काइंड ऑफ सिग्नेचर इज ओवर देयर so that will consider as authenticate and then जो रिसीवर रहेगा ही विल नॉट गोइंग टू गेट एनी डाउट कि पता नहीं मतलब ये सही में ये ट्रांजैक्शन है करना है नहीं करना है ये पेमेंट मुझे मिला है ये दे रहे नहीं दे रहे so that kind of a thing will not going to come into the receiver mind. See, digital signatures are a standard element of most cryptographic protocols suite and are commonly used for software distribution, financial transaction, contract management software, and in other cases where it is important to detect forgery or tampering. Okay, this is all about the digital signature they have given here. Okay, I'll show you through the Google like how does it show. Okay, I'm just opening one video here for you. Okay, we'll take a short one. Huh? What is digital signature? There are times when old-fashioned solutions don't meet our mind, like signing documents and contracts with a pen and paper. The digital world demands a more flexible and responsive solution, like digital signatures. Let's take Kariba, whose business partner is based abroad. Whenever they need to sign documents in the course of their work, it can end up taking them weeks to get deal done because of all the paperwork being physically sent back and forth. It's such a waste of time. Now, if Kariba and his business partner use digital signatures, close their deals in a matter of minutes, not weeks. They only need to select a document, right-click it, sign digitally using their secure PIN code, and then send it off by email. Process is completely paperless, and in the European Union, digital signature is just as valid as one made with ink. But it gets even better. With the mobile ID, Kariba can sign documents, make bank transfers, and more, all from his mobile phone. Wherever he happens to be, with whatever papers he needs to sign, whether they're for business or other legal purposes. Studies have shown that using the digital signature helps to save an equivalent of 1 full working week per year for every month in digital. Just stop and think for a minute what you could do with a whole extra week of time. Or take the environment. If in a small country like Estonia, which is a pioneer in the technology of digital signatures, it's been found that a stack of paper as high as the Eiffel Tower could be saved every month. Imagine how much it could be to reduce the waste of other larger European nations. Digital signatures enterprises all the way up through governments. It raises productivity and efficiency, helps to reduce our impact on the environment, and establishes a uniform digital market in Europe.
अच्छा, वॉइस वाज नॉट दैट क्लियर। एक मिनट रुको, मैं और दिखाता आपको, जस्ट अ मिनट। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, hello, this is Sam. Welcome back. Today, my topic is digital signature. There are times in old. Yes, we will see this one ना, डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर पेमेंट, ये वाला देखते हैं हम लोग। थोड़ा वॉइस बड़ा करती हूँ मैं, रुको। You log on to each of your bank's websites to validate your payment orders. Each bank's system is different, and your signatories do not have an overview of all the remittances awaiting validation. You therefore Student, voice is clear now? वॉइस आ रहा है बराबर वीडियो का? Yes? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, ओके। need a secure, standardized tool with which you can validate all your orders on the same screen, improve your security, and become more efficient. The solution, EBIX TS Digital Signature in Exabank. Digital signatures are accepted by all your banks, cannot be forged, and guarantee the integrity of your sent remittances. Your banks therefore receive remittances signed by a recognized user, the content of which could not have been changed. How does this work? All you need to do is enter into an EBIX TS contract with each of your banks. Signing your orders digitally in Exabank is then very simple. Once your orders are prepared, the first user closes the entry and appoints the signatories from the authorized users. The remittance is then awaiting signature. Each signatory receives an email notification and will find the remittance to be signed in their own environment. They can access all the remittance data. If they wish, a signatory can delete an order. If the remittances are acceptable, they can select the files and click on Sign. They then connect their personal signature key, enter their password, and automatically sign the files for all the banks in one go. Remittances can then be sent to the bank. The digital signature in Exabank is easy and free. Don't neglect your security. Choose the digital signature with EBIX TS. Are you clear with the digital signature? How does it work? Yes? Digital signatures rely on asymmetric key cryptography. Yes, sir. So before we talk about digital signatures, let's quickly remind ourselves how asymmetric key. Yes, you all are clear with what is the digital signature? How does it work? Yes? Yes, ma'am. है ना, डिजिटल सिग्नेचर मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं कि हम लोगों ने कर दिया, बट वहाँ पे वी नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म टू द बैंक, और उसके बाद में बैंक विल गोइंग टू गिव अस परमिशन। इवन जो सिग्नेचर रहता है वो तो बैंक के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो हम लोगों को वहाँ पे सिग्नेचर देने के लिए वी नीड टू दे विल द बैंक विल गोइंग टू शेयर वन पिन कोड टू अस, पिन कोड नहीं सॉरी, व्हाट वी कैन से पासवर्ड या फिर कोई कीवर्ड वो वहाँ पे दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कर सकते हैं। तो दे आर सेइंग कि हर एक बैंक उसको एक्सेप्ट करता है, सो इट मींस यस इट विल बी द ऑथेंटिकेटेड वन। तो ये जनरली आपको क्या लगता है, इसका क्या बेनिफिट रहेगा, क्या समझा आपको वीडियो के थ्रू, क्या बेनिफिट रहेगा डिजिटल सिग्नेचर का, और ये किन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट? अपने हिसाब से बोलो, क्या समझा आपको, क्या बेनिफिट रहेगा? टेल मी। यस, इसका बेनिफिट किसके लिए रहेगा? इट विल बी लाइक जोग्राफिकल एरिया लिमिट को वो कवर करेगा नहीं करेगा, क्या लगता है आप लोगों को? विल दे एबल टू कवर द जोग्राफिकल एरिया? यस, बहुत दूर दूर से भी हम लोग किसी भी चीजों का वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। मैम बिजनेसमैन लोग के लिए।
हाँ, इट विल बी गुड फॉर द बेसिकली बिजनेसमैन, ठीक है, जिनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन करने पड़ते हैं, और विदाउट देयर सिग्नेचर अगर हम लोग मतलब सपोज इफ यू प्लान टू डू द फिजिकली मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट टू सेंड द फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड देयर वी नीड टू हैव द फिजिकल सिग्नेचर, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, बिकॉज वो पोस्ट होने के लिए, वहां पे डिलीवर होने के लिए it will going to take a lot of time. But when we talk about the digital signature, बस बैठे बैठे वही सेम ऑफिस में ही हम लोग बहुत दूर दूर के जगह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हैं. So therefore it is so important, and it is quite beneficial for the businessman and the people who are doing a lot of overseas transaction, उनके लिए भी ये बहुत beneficial रहेगा. Okay, so this is all about the digital signature. Now we're going to see the next point. Okay, so now we'll start with the M wallet. M wallet सबको पता ही रहेगा. See, the mobile wallet, which is also called M wallet, digital wallet or e-wallet, refers to a mobile technology that is used similarly to a real wallet. The mobile wallet provides a convenient solution for any business looking to allow customer to purchase their product online with a greater ease, therefore driving sales. As mobile use grows rapidly, users begin to go online more often via mobile and even shop via mobile. With the mobile wallet, it is possible to hold all of the items that a physically wallet would carry on your mobile device. The mobile wallet can hold reward cards, medical records, then again credit and the debit cards and personal items. Rewards cards are useful in the mobile wallet because they will increase brand loyalty and make it extremely simple for customer to conduct transaction with a specific company via their mobile device. The mobile wallet can also hold the mobile wallet can also hold medical records, which is a beneficial for having important documents on hand at all times. The mobile wallet also has superior security features to ensure that such sensitive information remains secure. Credit and the debit card are also available in the mobile wallet, making secure transactions simple to conduct via mobile device. Finally, the mobile wallet can store personal items such as photos and the files for the added feeling of a real wallet. The mobile wallet is reflective of the increasing presence of mobile device in daily life. With the rise in the BYOD, that is bring your own device phenomena, employees are using mobile device in every aspect of their lives from home to the workplace. Okay, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ लाइक पार्टीज इन्वॉल्व इन द कार्ड प्रोग्राम ऑफ 4 पार्टी नेटवर्क. ओके, ठीक है. चलो, उन्होंने यहाँ पे बताया दैट इन एम वॉलेट योर डेबिट कार्ड, योर क्रेडिट कार्ड, देन अगेन डिजिटल, और वी कैन से यू आर डूइंग द ट्रांजेक्शन थ्रू द मोबाइल. अभी आप लोग मुझे जल्दी बताओ कि अगर आपको ऐसा कोई भी चीजों का पेमेंट करना है, कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है, तो मोबाइल फोन में आप कैसे यूज करते हो, मतलब क्या चीजों को यूज करके आप मोबाइल के थ्रू पेमेंट करते हो. बहुत सारे लोग करते ही रहेंगे कि मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट किया जाता है करके. यू डोंट नीड टू सिट ऑन पीसी और फिर तब भी आप करोगे, वैसा बात नहीं है. अगर आपके पास मोबाइल भी है तो आप वो पेमेंट कर सकते हैं. तो मैं नो लाइक कौन सा इजीएस्ट आप लोग कौन सा मोड ज्यादा यूज करते हैं, कौन सा ऐप आप लोग ज्यादा यूज करते हो पेमेंट के लिए मोबाइल के थ्रू. मैम पेटीएम एंड हाँ, पेटीएम. ओके, और फोन पे, देन अगेन गूगल पे भी करते रहोगे तुम लोग, एम आई राइट, जी पे वगैरह करते रहोगे, इजंट इट. आई थिंक बेसिकली यही चीजों को यूज किया जाता है. अगर तुम्हारे पास डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड है तो उसको भी हम लोग अपने मोबाइल के साथ लिंक करके वी कैन डू द पेमेंट ऑल्सो थ्रू द मोबाइल. ठीक है, वो भी होता है. सो देयरफॉर दैट थिंग, और ये फेनोमेना बेसिकली क्यों इतना कहा गया है कि द पीपल विल नॉट गोइंग टू होल्ड कैश विद देम. इवन आप लोगों ने अगर नोट किया रहेगा, मे बी बिकॉज ऑफ दिस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, बेसिकली बहुत सारे शॉपकीपर ने अपने पास वो मशीन में रख दिया था, फोन पे के लिए कुछ ना कुछ, जीपे के लिए कुछ ना कुछ उनका कोड रहता है, वो सब रखा हुआ था. एंड द मेन इंटेंशन इज व्हाट हियर, द पीपल शुड हैव द बैंकिंग हैबिट. लोगों ने अपने अकाउंट में पैसा रखना चाहिए एंड देन ओनली दे कैन डू दिस काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन हियर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एम वॉलेट. वी कैन से एम वॉलेट के बारे में वीडियो देखना है या ओके अंडरस्टूड, व्हाट डू यू ऑल से? यस,
देखना है मैम। देखेंगे ना, ठीक है चलो। एक मिनट स्टूडेंट। ये 7 मिनट्स का है, इतना बड़ा नहीं देखना हम लोग को। चलो ये देखते हैं, मोबाइल वॉलेट देखते हैं, ये वाला 3 मिनट का है, 3 साल। जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन। वॉइस इज क्लियर, वीडियो का वॉइस क्लियर है? यस यस डन। स्लो है यस मैम। मैम। ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज के दौर में मोबाइल फोन ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है ना, और उसके साथ ही मोबाइल वॉलेट के जरिए ट्रांजैक्शन करना भी अब कितना आसान हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल वॉलेट आखिर होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इस टेक्निक को आप किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताएंगे। मोबाइल वॉलेट क्या है? मोबाइल वॉलेट एक तरह से एक भुगतान सेवा है जिसके जरिए से व्यवसाय और मोबाइल उपकरणों के जरिए से लोग धन राशि का आदान प्रदान कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट को मोबाइल मनी या फिर मोबाइल मनी ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पैसे डिजिटल मनी के तौर पर भी स्टोर किए जाते हैं। ये एक तरह का वर्चुअल खाता ही है जो मोबाइल नंबर लेते वक्त अन्य दी गई डिटेल्स को आधार बनाकर पैसे का लेन देन करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट गए हो और अगर वहां जाकर आप अपना बिल मोबाइल वॉलेट के जरिए पे करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि रेस्टोरेंट किसी मोबाइल वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ा हुआ हो, तभी आप अपना बिल मोबाइल वॉलेट के जरिए आसानी से पे कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि मोबाइल वॉलेट की तकनीक क्या है। मोबाइल वॉलेट के जरिए आप अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड की जानकारी अपने फोन में ही रख सकते हैं और खरीदारी करते वक्त अपने प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल ना करके आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच या फिर टैबलेट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। उसके बाद आप मोबाइल वॉलेट ऐप को जाकर अपने फोन में डाउनलोड करें, फिर वहां पर रजिस्टर करें और उसके बाद अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से मोबाइल वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करें। इसके बाद आप मोबाइल वॉलेट की सभी सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि मोबाइल वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं। मोबाइल वॉलेट 3 प्रकार के होते हैं: ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज्ड वॉलेट और क्लोज्ड वॉलेट। ओपन वॉलेट, इस तरह के वॉलेट में आप खरीदारी और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ कैश भी आसानी से निकाल सकते हैं। भारत में इस तरह की सेवाएं एटीएम या फिर अन्य किसी निर्धारित माध्यम के जरिए उपलब्ध या प्राप्त करी जा सकती है। भारत के अंदर ये सेवाएं सिर्फ बैंक ही आपको प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए वोडाफोन का एम पैसा ऐसे वॉलेट में रखा जाता है। सेमी क्लोज्ड वॉलेट, इस तरह के वॉलेट में आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और अन्य बहुत सारी सेवाओं का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन आप इसमें कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे क्विकली। क्लोज्ड वॉलेट, इस वॉलेट में ऑर्डर कैंसिल होने के बाद हमारा पैसा व्यापारी अथवा दुकानदार के पास ही लॉक हो जाता है। यानी अगर कोई विशेष सेवा प्रदाता कंपनी की सेवाओं के लिए हम अपने पैसे उस कंपनी के वॉलेट में डालते हैं, तो हम उस कंपनी की सेवाओं के लिए भी उस राशि को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के वॉलेट को क्लोज वॉलेट कहते हैं। उदाहरण के लिए ओला मनी, बुक माई शो जैसी ऐप पर अपना खाता बनाकर उसमें आप पैसा ट्रांसफर करके सिर्फ इन्हीं के द्वारा दी गई सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे ना तो आप नकद पैसा निकाल सकते हैं और ना ही दूसरों की सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं। तो आपको आप जान ही चुके हैं कि मोबाइल वॉलेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसकी तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसी ही वीडियो देखने के लिए विजिट करें jagrannews.com। Till the next time. ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज ट्राइंग से हियर कि हर एक, जैसे हम लोगों ने बात किया फोन पे, देन अगेन पेटीएम, देन अगेन जी पे,
तो वो हर चीज का उन्होंने क्या कहा है कि दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब क्लोज वॉलेट, सेमी वॉलेट से उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे 3 टाइप के बताए। तो एक उन्होंने ये भी बताया कि पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंने नहीं सुना था कि विड्रॉ भी होता है करके, इट वॉज नॉट नोन टू मी। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड डाल के, हाँ वो तो बराबर है, वो तो हम लोग रखते ही डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड उसके अंदर, लेकिन पैसा विड्रॉ करने वाला मुझे भी नहीं पता था। बट पेमेंट जैसे उन्होंने कहा है कि बुक माई शो के हम, जैसे उन्होंने कुछ वहाँ पे ऐप बताया कि अगर इनके सर्विसेज को यूज करना है तो उनके अकाउंट, उनके ही लिए वहाँ पे कुछ पैसा रखना पड़ेगा। इवन वो भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि बस उनके ही लिए वही सर्विसेज के लिए पैसा यूज किया जाए। सो दैट थिंग वी आर नॉट बेसिकली डूइंग। आई थिंक जितना मुझे लग रहा है कि जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, इट इज ऑल टू डू द पेमेंट। एम आई राइट और नॉट? मतलब जस्ट पेमेंट करने के लिए हम लोग ज्यादा एम वॉलेट को यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग बाकी चीजों के लिए कि हाँ इवन किसी को ट्रांसफर करना है, मतलब अगर अपने फ्रेंड्स को पैसा चाहिए वगैरह, तो वो सब के लिए भी हम लोग ये सब ऐप को यूज करते हैं। शॉपिंग करने के लिए हम लोग ये ऐप को यूज करते हैं। बाकी पैसा विड्रॉ करना नहीं, मैंने नहीं कभी देख, आपका कभी यूज नहीं किया है? आप लोगों में से किसी ने यूज किया है कभी ये? यस, या फिर तुम लोगों ने जस्ट पेमेंट के लिए यूज किया है? व्हाट यू ऑल से? किसी ने किसी के लिए यूज, मतलब आप लोग यूज करते हो या नहीं करते हो? घर पे कोई तो यूज करता रहेगा। यस और नो स्टूडेंट? नहीं यूज करते एम वॉलेट? करते हैं करते हैं ना, हाँ फिर तो करते। जनरली किन चीजों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है एम वॉलेट को किसी घर पे? ना, मनी ट्रांजेक्शन। हाँ वही, आई थिंक मेजोरिटी टाइम ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। अदरवाइज विड्रॉ ऑफ मनी वगैरह वो तो हम लोग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से या फिर अपने अकाउंट में से किसी अकाउंट को देना, उसके लिए यूज किया जाता है। बट कैश उसके थ्रू लेना नहीं, ये कभी नहीं यूज किया गया। ओके, तो चलो ये एक हम लोग को कुछ नया पता लग गया एम वॉलेट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड पॉइंट देखेंगे अभी, बेसिक ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन सेविंग एंड करंट अकाउंट। अच्छा ये तो पता रहेगा तुम लोगों को, चलो फिर भी देख लेते हैं। सेविंग बैंक ऑनलाइन अकाउंट एप्लीकेशन प्रोसेस इन ब्रीफ। सब लोगों ने ये प्रोसेस कंप्लीट किया रहेगा। आई थिंक यू ऑल आर मस्ट बी हैविंग योर सेविंग अकाउंट। ओके, तो लेट्स, आप लोगों ने ये प्रोसेस किया रहेगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझेगा कि ये क्या है करके। यू मे फिल अप एन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट। द प्रोसेस इन ब्रीफ वुड बी एज फॉलो। अच्छा मतलब यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से ऑनलाइन के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन में हाउ डू वी गोइंग टू ओपन द सेविंग अकाउंट हियर। ओके, so fill up and submit the required details online. Print the account opening form AOF on A4 size white paper. Attach the required documents such as photographs and the proof of identity and address as mentioned in the AOF. A TCRN, that is temporary customer reference number, will be generated, which please note down. TCRN will also be sent on the registered mobile number of the applicant. देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म फिलिंग का काम कर रहे हैं अभी तक हम लोग ऑनलाइन पे। ठीक है, हम लोगों ने जो ऑनलाइन फॉर्म था वो फिलअप किया है, उसका प्रिंट निकाल कर रखा हुआ है। उस प्रिंट में उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग को बोले थे अटैच करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट को अटैच किया हुआ है। एंड देन फॉर दिस वन दे विल गोइंग टू सेंड अस वन टेम्पररी कस्टमर रेफरेंस नंबर, जो तुम्हारे मोबाइल में भी वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा, तो उसको आप लोग अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखोगे, एंड दैट वी विल गोइंग टू नोट इट डाउन। देन इंफॉर्मेशन दैट यू विल नीड टू प्रोवाइड, अभी क्या क्या प्रोवाइड करना है। For opening an account, you need to provide the following information. First one here, KYC, know your customer information. The acceptable KYC documents are available through drop down menu in the AOF. मतलब जो अपना यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, उसके अंदर उसके साथ में ही केवाईसी भी रहता है, केवाईसी का भी डॉक्यूमेंट रहता है, तो वो हम लोगों को फिल करना पड़ता है। देन information about the saving bank account you wish to open and facilities you would want in the account. जैसे कि तुम्हें क्या चाहिए, चेक बुक चाहिए क्या, तुम्हें मैसेजेस आने चाहिए, ई बैंकिंग चाहिए क्या, so that kind of a thing they may going to ask you like what facility you require with this opening of saving account. Then form 60, if you do not have permanent account number PAN of income tax, अगर आपके पास कोई पैन नंबर नहीं, मतलब इनकम टैक्स का नहीं नंबर है, तो आपको फॉर्म 60 भरना ही पड़ता है। देन फॉर्म DA1 इज ऑप्शनल वन इफ यू विश टू मेक अ नॉमिनेशन, अगर आपको किसी को नॉमिनी रखना है अपने अकाउंट के लिए, तभी आपको ये फॉर्म DA1 भरना पड़ता है।
Now, what are all the benefits? Convenience. The AOF, that is account opening form, can be filled at your convenience, and the fields that can be validated are checked for the errors. Quick. Time taken for opening of the account at the branch will get reduced as the data will already be available in the system. And then safety. The data will be submitted on the verified secured site, and the information will be encrypted before transmission. Okay, now you tell me one thing. आपको क्या लगता है कि इन दिस प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग भले उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन पे करना है, बट डज इट मीन दैट यू डोंट नीड टू विजिट ब्रांच एट ऑल? ऐसा होगा क्या? यस yes, अगर आप लोग ऑनलाइन पे फॉर्म भर रहे हो तो आपको ब्रांच पे जाने की जरूरत ही नहीं है. इज इट समथिंग लाइक दैट? या आपको ब्रांच पे जाना पड़ेगा, एक बार तो विजिट करना पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? क्या समझा आपको ये प्रोसेस तक? यस. अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उन्होंने बोला है ऑनलाइन भरना है, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि भले वो लोग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बोल रहे हैं कि चलो ऑनलाइन भरो, तो इसका ये मीनिंग हो गया क्या कि उनको कभी भी यहाँ पे मतलब ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन. आपको क्या लगता है, ब्रांच में जाने की जरूरत है या नहीं है? Yes, ma'am, have to go. Yeah, they have to go. Why they have to go? Because they have to submit the KYC document, whatever the physical copies that we will going to attach with the form, वो सब हम लोगों को वहाँ पे देना पड़ेगा. और उन्होंने क्या बताया कि टाइम कौन सा सेव होता है? You don't need to go to the branch and then ask them, be in the line and then ask them कि चलो हमें वो फॉर्म दे दो, वहाँ पे बैठ के फॉर्म फिल करना, वो सब करने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर डूइंग इट लाइक ऑनलाइन ओनली, तो ऑलरेडी डेटा बैंक के पास चला जाता है तुम्हारे बारे में. तो जस्ट आप लोगों को उसका प्रिंट निकालना है, उसके साथ जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बोले हैं फिजिकल कॉपीज, वो वहाँ पे सबमिट करना है. सो दिस वे योर टाइम विल गोइंग टू सेव, कि फॉर्म वहाँ पे जाके भरने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस. स्टेप 1, fill the customer information section. This section will have to be filled for each person wishing to open the account. You must fill part A first. Once you fill part A and save the form, a temporary customer reference number will be generated, which may please be noted. You will need it later to edit the form. If you desire and to link the customer in the account opening form, subsequent parts in this step can be filled only after you have successfully filled part A. ओके, तो उन्होंने पहले बताया कि कस्टमर इंफॉर्मेशन CIF वहाँ पे भर के रखना है हम लोगों को, उसके बाद में TCRN जनरेट होता है. Then step 2 है, fill the account information section. Type of account and services required, nomination form, optional but recommended. Note this section will have to be filled for each account that you wish to open. तो मतलब यहाँ पे भले you are talking about the current account or the saving account, लेकिन ये हर एक फॉर्म के लिए आपको भरना ही पड़ता है. You must fill part A first. Once you will fill part A and save the form, a temporary account reference number will be generated, which may please be noted. अच्छा, फिर से उन्होंने किया है. Okay, subsequent parts in this step can be filled only after you have successfully filled part A. After successful filling up of data in the account opening form, an SMS notification will be sent to the first applicant mobile number along with the TARN. ओके, मतलब आपका मैसेज आएगा. ओके, मतलब आपका स्टेप कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और आपका TRN नंबर क्या है, उसके बारे में आपको मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा. Step 3, read the saving bank rule. Please read this rule carefully before signing the account opening form. By applying to the bank for opening the account, you would be confirming that you have read the rules and that you agree to abide by this. A print of the same can also be taken by your after generation of TARN. अच्छा, मतलब TRN जनरेट होने के बाद में ही यू कैन टेक द प्रिंट ऑफ दोज थिंग. ठीक है, अपने सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में आपको वो डिटेलिंग के लिए वो फॉर्म भरना पड़े, मतलब उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, स्पेसिमेन ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सेविंग अकाउंट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड स्पेसिमेन फॉर ऑनलाइन कार्ड एप्लीकेशन. ओके, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन. Okay, so this is all about your opening of saving bank account and the current account. Next lecture में हम लोग देखेंगे application for home loan and then application process for credit card, applicable KYC norms in banking, e-KYC. Okay, चलो अच्छा, नेक्स्ट वाले भी अच्छे पॉइंट से
थोड़ा एडिशनल आपको नॉलेज मिलता रहेगा. ओके, इज देयर एनीवन हु हैव ओपन द बैंक अकाउंट ऑनलाइन? किसी ने भरा है अपने क्लास में से? बिकॉज अभी तक मैंने भी नहीं किया है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म, मैंने कभी नहीं भरा हुआ है. व्हाट अबाउट यू पीपल, हैव यू डन इट? या तुम लोगों ने भी बैंक में जाके ही किया हुआ है? यस, व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस स्टूडेंट? आप लोगों ने भी फॉर्म बैंक में ही बना भरा हुआ है या ऑनलाइन पे भरा हुआ है कभी अकाउंट ओपनिंग के लिए? कोई किसी ने? बैंक में. ओके. अच्छा, कल के दिन जो ये अपना व्हाट वी कैन से जो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग हुआ था कि आप लोगों को एग्जाम कैसे देना, वो सब आपको समझा या नहीं समझा? कल के दिन का दोपहर वाला सेशन था वो मैम समझा. समझा ना कैसे करना है, क्या क्या एग्जाम के लिए वगैरह? कोई डाउट नहीं है? यस. हाँ, मैं फिर भी देखती हूँ, अगर मुझे वीडियो मिलता है कुछ तो मैं देखती हूँ, आपको शेयर करती हूँ, या फिर पीपीटी आई थिंक शेयर किया है ना ग्रुप में? यस मैम, सर ने किया है. पीपीटी के थ्रू भी अगर आपको आइडिया आता है तो अच्छी बात है फिर. बिकॉज अभी आगे से आपको ऐसे ही वही टाइप में उसी इसमें एग्जाम देना पड़ेगा इसके लिए. I hope that all of you have written the roll number. Hmm. Yes, from roll number 1 to 10, I can see 2. I can see 2 roll number, 7, 8, 10. कोई नहीं इसके अलावा? 3. Okay, Ma'am, 10. 3 is there, and then 7, 8, 10. Na inga best. Okay, 7, 8, 9, 10. Okay, then from 11 to 13, I can see the roll number here 13, 15, 13, 15, and then 16, and then 18, 20. Is there anyone else apart from this? कोई और है? नहीं. Okay, then from roll number 21 to 30, I can see only roll number 29. और कोई नहीं इस ग्रुप में? Only प्रियंका is there. बाकी कोई नहीं है? नहीं. Okay, then from 31 to 40, I can see roll number 31. Right, 31, and then 32, then 34, 35, 36, 37, 38, 39. That's it. Okay, then from roll number 41 to 50, I can see roll number 45, and then 47. Ma'am, 32. एक मिनट बेटा, एक मिनट. 48, 49, and then 50. Okay, then from roll number 51 to 54. 51 to 54, I can see 51 is there, and then 54 is there. Then Shehnaz Sheikh, and who is that? 30. Yes, और कौन था? अरे मैम, मैं कल प्रेजेंट थी मैम, मेरा एब्सेंटी लगा है. Who is that? Shital. यस मैम. Okay, right. Shital, what is your roll number? 47 मैम. हाँ, तूने वहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखा रहेगा ना, इसके लिए मैंने एब्सेंट दिया रहेगा. Okay, Mariam भी और somebody from 30 group. Who was that? 32. Mariam भी, where are you? I cannot see you. No, I cannot see her. Okay, that's it, student. Shall I end the lecture? Yes.
Okay. So I'm ending the lecture now. Bye.